Good morning, students. I'm Dheeraj Singh, and I'm going to explain you today the poem Fire and Ice. In your last lecture, I have explained you this poem, but due to the difficulty in the audio, some students have doubts regarding this poem. In the last video, the audio was not clear, it could not be heard very well. So in this video, I will take care that the audio quality is good enough so that all the students can hear my voice properly. So this poem, this video is again a relecture of the last poem we already did. So please be attentive while I explain you this poem. I will explain you all the difficult words and the internal meaning. The literary devices of this poem will be explained you when you come to the class. Okay, not in this online video class. Okay, students, so there are many things which I will teach you, but this will be possible only in the school. So now for the time being, let us only learn the essential meaning, internal theme of the poem. The extra things, for example, some important notes and the literary devices of the poem shall be taught to you when you come to school. Okay, so let us start. The name of the poem is, the title of the poem is Fire and Ice, and it is written by Robert Frost. So first of all, you need to understand that fire and ice here is a metaphorically used word. It is a metaphor. Okay, fire means something else in the poem and ice also means something else. ओके, फायर का मतलब आग है, आइस का मतलब बर्फ़ है, ये तो आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है इन दोनों को. फायर का मतलब कुछ और है और आइस का मतलब कुछ और है इस पोएम में. ओके, सो आई विल लेट यू नो ऑल दैट इम्पॉर्टेंट थिंग्स one by one. So first let us read the poem. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So some say the world will end in fire, some say in ice. So what I have told you, the fire and ice, it has different meanings. So what is the meaning of fire? Fire here means desire. किसी चीज़ की चाह रखना, इच्छा. ओके, व्हाट वी वांट, आवर वांट्स, आवर डिज़ायर, हमारी इच्छाएं, इसको हम यहाँ पे फायर का रूप दिया गया है. एंड व्हाट इज़ आइस? आइस मीन्स हियर, आइस टोटली मीन्स हेट्रेड. ओके, नफ़रत. यहाँ पे आइस को पोएट ने डिपिक्ट किया है हेट्रेड, किसी से नफ़रत करना. ओके, सो अभी फायर एंड आइस का मतलब क्या समझा आपने? डिज़ायर एंड हेट्रेड, डिज़ायर एंड हेट्रेड, इच्छा और नफ़रत. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू लर्न टू थिंग्स विच आर वेरी रिलेवेंट टू एवरी ह्यूमन बीइंग. ये दो चीज़ें हर इंसान में होती हैं. इंसान किसी न किसी चीज़ की इच्छा रखता है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखता है, किसी चीज़ से वो नफ़रत करता है. सो लेट अस सी व्हाट द पोएट वांट टू से अबाउट दिस. Some say the world will end in fire, some say in ice. So what does the poet say in the first two lines? He tries to say that some say मतलब किसी ने कहा या कोई कहते हैं या लोग कहते हैं. ओके, some say. तो some यहाँ पे जनरली, some यहाँ पे लोगों को कहा गया है, जो कॉमन पीपल ऑफ द वर्ल्ड. एंड स्पेशली ये एम्फसाइज करता है साइंटिस्ट को, एस्ट्रोलॉजर्स को. ठीक है. तो ये लोग कहते हैं कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी. द वर्ल्ड विल हैव ए डूम्सडे, एक दिन अंत होगा. एंड इट विल एंड इन फायर. ओके, एंड सम से इन आइस. और कुछ और लोग कहते हैं, दो दिस पीपल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. वन ग्रुप से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम ग्रुप से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस. तो फायर का मतलब क्या होता है? डिज़ायर. सो हियर द पोएट सेज दैट मैनी पीपल बिलीव्स दैट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू desire of the people, and some say in ice, and many other people say that the world will come to an end. पृथ्वी का विनाश
आइस की वजह से होगा, मतलब नफ़रत की वजह से, हेट्रेड की वजह से होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी का विनाश होगा फायर की वजह से, इच्छाओं की वजह से, लोगों की इच्छाओं की वजह से, मनुष्य की इच्छाओं की वजह से। ओके, From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. From what I have tasted of desire. So here a poet अपनी पर्सनल ओपिनियन रख रहा है, वो अपने पर्सनल वो क्या फील करता है। From what I have tasted of desire, उसने कहा कि डिज़ायर को लेके उसने जो महसूस किया है, उसने जो देखा है लोगों के बीच इच्छाओं को लेकर। ओके, रिगार्डिंग फायर मीन्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, फायर को आप यहाँ पे आग के तौर पे ना लेके जाए। जब भी मैं फायर कहूँगा आप ये सोचिए कि मैं डिज़ायर की बात कर रहा हूँ, इच्छाओं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मैंने इच्छा के लोगों के प्रति, मनुष्य की जो इच्छाएं जो हैं, अनलिमिटेड डिज़ायर्स जो है, उसको देखते हुए, उसको समझते हुए पोएट अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। आई होल्ड विद दोज मतलब मैं उनका सपोर्ट करता हूँ जो फेयर करते हैं, फायर को फेवर करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं फायर को। ठीक है, सपोर्ट करना मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जो लोग ये कहते हैं कि पृथ्वी का विनाश फायर की वजह से होगा, द एंड ऑफ द वर्ल्ड विल बी ड्यू टू डिज़ायर, तो पोएट उनको सपोर्ट करता है। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हाउ डिज़ायर और फायर विल कोज एंड टू द वर्ल्ड। लेट अस टेक ए प्रोपोर्शनल एग्जांपल ऑफ ए वर्ल्ड वॉर। किसी वर्ल्ड वॉर का हम एग्जांपल लेते हैं, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, ओके, या 2 हो। तो व्हाई डज दिस वार्स हैपन? दिस वार्स हैपन बिकॉज सम कंट्रीज वांट टू टेक ओवर अदर कंट्रीज। वांट टू, देखो इस बात पे में क्या आ रहा है, वांट टू, लोग वांट का मतलब क्या होता है, चाहना, किसी चीज़ की इच्छा। तो कोई देश अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए, अपने आप को अल्टीमेट पावर बनाने के लिए, द नंबर 1 इन द वर्ल्ड बनाने के लिए वो क्या करता है, वो दूसरे छोटे देशों पे अटैक करता है। ओके, सो तो फिर अटैक के बाद क्या होता है, वो दूसरे देशों के समर्थन में कोई दूसरा देश आता है एंड फेवर इन अनदर कंट्री, सो द हेल्प कम्स फ्रॉम अनदर डिफरेंट कंट्रीज। और इसी तरह ये जो एक अटैक जो था वो बढ़ के बाद में बड़ा होके ये वार बन जाता है, बैटल्स बन जाते हैं। जो बैटल्स जो है वो एक दूसरे के साथ देश लड़ते लड़ते ये क्या होता है, ये वार बन जाता है, महायुद्ध, बहुत बड़ा युद्ध बन जाता है। So what I want to say here is, what was the reason of that war? What was the reason? और इनिशियल स्टार्ट कहाँ से हुआ? इनिशियल स्टार्ट वहाँ से हुआ जब कोई देश वो इच्छा अपनी वो पूरी करना चाहता है, और वो इच्छा क्या होती है, द डिज़ायर ऑफ बीइंग ग्रेट, द डिज़ायर ऑफ बीइंग ग्रेटेस्ट, सबसे महान होने की जो इच्छा है उसकी, उस इच्छा को पाने के चक्कर में वो क्या होता है, वो दूसरे देशों पे अटैक करता है। सो वार्स आर द वेरी कॉन्क्रीट एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। जो युद्ध होते हैं, वार्स होते हैं, वो एक कंक्रीट एग्जांपल है इस दुनिया के विनाश का। ठीक है, सो now you have learned how I have given how fire can cause the end of the world. So this is a concrete example, and let me give you small examples like we fight in our life to get being better opportunities. We always struggle. हम हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें, हम कैसे सक्सेसफुल बने, हम कैसे और आगे बढ़े। आवर डिज़ायर्स आर नेवर लिमिटेड। ओके, व्हेन यू आर ए किड वी वांट ए बाईसाइकिल, तो वो तुम्हारी इच्छा होती है कि काश एक बाईसाइकिल मिल जाए मुझे। जब तुम थोड़े बड़े हो जाते हो तो उस बाईसाइकिल तुम्हें और पसंद नहीं आती, यू वांट बाइक। व्हेन यू लिटिल ग्रो मोर बिगर, आपको बाइक नहीं, आपको कार पसंद आने लगते हैं, 4 व्हीलर पसंद आने लगते हैं। आप जब 4 व्हीलर आपके पास आ जाएगी तो आप स्पोर्ट्स कार पसंद करने लगते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ, लिमोजीन्स पसंद आने लगते हैं। फिर आपको जितनी मिलती जाएगी, आपकी डिज़ायर उतनी ही बढ़ती जाएगी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट, सो दिस कॉज फ्रीक्वेंट, सो या आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में आप किसी न किसी तरह से किसी और को, यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर हर्टिंग समवन। Okay, you are trying to crush someone and you are trying to go forward. Your actions may knowingly or unknowingly may harm others. So here by this way the poet says tries to say that in our desire to be greatest we are harming someone else. Okay, so
if not a one person, not a two person, if every person in the world is nowadays just thriving towards superiority, just moving towards superiority, so this results in the doom of the world. So this is what the poet wants to say, Robert Frost wants to say that how fire, कैसे आग जो है, फायर जो है, जो डिज़ायर जो है, वो किस तरह वर्ल्ड को एंड कर सकता है. Okay, so that is the first stanza. In the second stanza, let us see. But if it had to perish twice, I think I know of enough hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. So but अगर तो फायर से तो एक बार राइटर के हिसाब से पृथ्वी नष्ट हो सकती है या हो जाती है, लेकिन अगर उसको दोबारा बर्बाद होना हो, उसको अगर द वर्ल्ड को दोबारा ख़त्म होना हो, ओके, एंड होना हो, देन ही ऑल्सो सेज दैट आई थिंक आई नो ऑफ एनफ हेट. The writer says that he knows enough hatred, and hate matlab nafrat. So he knows enough hatred in this world to say that for destruction ice is also great. So he says that there is enough hatred in the world, that it is enough. This hatred is enough to destroy the world. नफ़रत इतनी है दुनिया में, एक दूसरे के प्रति इतना नफ़रत है दुनिया में कि ये इस पृथ्वी को ख़त्म कर सकती है. ठीक है. ही हियर से नॉट ओनली फायर, सिर्फ फायर ही नहीं, सिर्फ डिज़ायर ही नहीं, अगर दुनिया को ख़त्म होना है तो आइस यानी नफ़रत भी इतना है दुनिया में कि वो दुनिया को आसानी से ख़त्म कर सकता है. मैं ये जो आसानी से ख़त्म कर सकता है, मैंने इस वर्ड को इसलिए कहा कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड वुड सफाइस. सफाइस का मतलब देखो मैंने यहाँ पे लिखा टू बी सफिशिएंट. टू बी सफिशिएंट है अधिक मात्रा में होना, पर्याप्त होना किसी चीज़ का. तो एंड वुड सफाइस मतलब टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस मीन्स दुनिया को अगर दोबारा ख़त्म होना हो. इन द सेकेंड पैराग्राफ ही सेज दैट अगर दुनिया को दोबारा ख़त्म होना हो, इफ़ द वर्ल्ड हैड टू फेरिश ट्वाइस, देन देयर इज़ एनफ हेट. There is enough hatred in the world. People hate each other so much that this can easily make the end of the world, and it would suffice, and it is enough hate is there, enough hatred is there in the world. So perish means die, and suffice means to be sufficient. Perish, the word here perish twice. Perish twice मतलब अगर दो बार उसको ख़त्म होना हो, and suffice means to be sufficient. Okay, so how hatred कैसे, hatred कहाँ से फैलता है? Hatred also it is directly related to और indirectly related to desire. डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी डिज़ायर से रिलेटेड ही होता है hatred. हम अपनी सुपीरियरिटी के लिए जब हम किसी को अपने से नीचे धकेल देते हैं या कोई हमसे नीचे चला जाता है, मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो कोई ऑटोमेटिकली कोई पीछे रह जाता है. जो पीछे रह जाता है वो ऑटोमेटिकली मुझसे हेट करने लगेगा. ओके, व्हेन देयर इज़ वर्ल्ड वॉर, व्हेन द विक्टोरियस कंट्री, जो कंट्री जीत जाती है जंग, तो वो तो जीत की खुशी मनाएगा, लेकिन जो कंट्री हार जाती है उसके मन में एक नफ़रत, हेट्रेड भर जाएगा अगेंस्ट दैट कंट्री. चाहे वो तब हार गया हो, चाहे वो नफ़रत दिखा ना पाए, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करेगा कि कब मैं ताकतवर बनूं इससे ज़्यादा और कब मैं इसे युद्ध में हराऊं. सो दिस थिंग्स आर इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समहाउ रिलेटेड, डिज़ायर और हेट्रेड. Okay, so here the main theme of the poem Robert and Frost tries to say is that in this world there is enough hatred among people, enough desires of the people are so much increasing that एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर हम अपने डिज़ायर को कंट्रोल न करें, अगर हम एक दूसरे से प्यार न करें, एक दूसरे का सम्मान न करें. इफ़ वी डोंट रेस्पेक्ट ईच अदर, इफ़ वी डोंट रेस्पेक्ट ईच अदर्स सक्सेस, इफ़ वी डोंट रेस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियंस, देन द वर्ल्ड विल सून एंड. मतलब एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, एक दिन बहुत बड़ा विनाश होगा अगर हम सब अपनी डिज़ायर को और अपनी हेट्रेड को कंट्रोल ना करें.
Okay, so I hope you have understand the poem. यहाँ तक इस पोएम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है. इसके लिटरेरी डिवाइसेस और सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड यू व्हेन यू कम टू द स्कूल, एज आई हैव टोल्ड यू in the beginning of the poem. If you have any doubt, please don't feel shy to mention the doubt. आप लोग डाउट, अगर कोई किसी चीज़ में, किसी लाइन पे, किसी सेंटेंस पे डाउट हो तो बेझिझक आप डाउट सेक्शन में उसके क्वेश्चंस को एराइज कर सकते हैं. ओके, सो आई विल नॉट बी गिविंग यू एनी असाइनमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम नाउ. आई विल जस्ट लीव इट इन द डाउट सेक्शन. Okay students, bye and have a great day.